Hey everyone, welcome back to another video. And today, as we are learning the topic 4, so today we are learning about the application of what quadratic equation. And now, the in the another video, I talked about the another one like based on the number. Now this time we're going to solve problem on the based on the age, means how we can solve such equation. Okay, so I have some this question, and then we're going to solve this one. um, First we're going to read this one. You read it properly. Like, 1 year ago a man was 8 times as old his son. 1 year ago, you see, a man was 8 times as old his son. Now his age is equal to his age is equal to a square of his son age. Find the present age. You see, you may be confused by looking this one, but no need to get confused. I'm going to solve it one by one. A step means you're going to get all the step explanation about this question. And promise me, not promise me, okay, believe me, this is very easy. Okay, and I promise you that this is going to be super easy. Okay, how to solve such equation? Okay, first of all, we're going to find out the unknown thing. What is the unknown thing here? You see, a man means 1 year ago, a man was 8 times as old his son. Means 1 year ago, I don't know, this man was 8 times old. I don't know, I don't have any idea what was his age and what was his son, and 8 times or 3 times or whatever maybe. But I don't know what is the like present like age of son, what is the present age of man 1 year ago, what is they. So I don't know nothing, I know nothing. So find their present age. First of all, you see, they are saying that a man was 8 times as old as son, but I don't know what his son age is. So first of all, I'm going to take solution. Okay, this is going to be super easy. No need to get no need to worry anything. Just you see, first of all, we'll say let. What let means मान लेना. Okay, मान लो. What I don't know. You see, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी 8 गुना मीन्स 8 टाइम्स है अपने बेटे से, बट मुझे तो पता ही नहीं उसके बेटे का कितना एज है. तो सबसे पहले उसको हम लेंगे लेट प्रेजेंट, और दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, सो आई एम राइटिंग लेट प्रेजेंट एज of his son equal to x years, you can say. Okay, and then after, you see, they are saying 1 year ago, but I don't know what was his age 1 year ago, so I can just write 1 year ago his son's age equal to what. You see, 1 year back means, suppose for example I have 19 years, so if I go 1, then that means -1. So I don't know what his age, but I suppose it as a present age is x, so I'm going to write x minus y. Is it understandable? X minus y means, suppose his age is 12 year or whatever maybe, then if I minus 1, then we'll get the 1 year back age, no? Isn't it? Okay, now after this, you see, 1 year ago, don't get confused. Okay, if you have any problem regarding this question, you can ask me in the comment section and I will try to help you out. Man's age. Okay, 1 year ago, what his man's age means, what इसका कितना एज है. You see, a man was 8 times as his old son. मतलब ये इसका कितना एज है मुझे पता नहीं, लेकिन एक साल पहले क्या, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला है, देखो 1 year ago a man was 8 times as old his son. 8 times का मतलब क्या, उसका लड़का का मान लो x ईयर है, तो उसका 8 times 8 into x, तो ये 8x ही होगा. isn't it? So that's why 1 year ago, तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइक उसके सन का जो भी एज होगा, तो 8x ने लिखे डायरेक्टली हम x minus 1, क्योंकि एक साल पहले इसका एज इतना हो जाएगा, है ना. ये सिंपल. सो अभी यहाँ से क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 8, और हम ईयर्स कह देंगे जो भी पॉसिबल ईयर्स. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. ओके, इसके बाद क्या, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट एज ऑफ मैन हमने लिखा नहीं है. एक साल पहले का तो लिखा, लेकिन प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो सकता है, प्रेजेंट एज क्या हो सकता है,
इसमें हम +1 कर देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा ना, क्योंकि 1 साल पहले के बाद बोल रहा है। ओके, ओके, तो हम क्या कहेंगे, लाइक 8x - 8, हम इसमें +1 कर देते हैं। ये हमारा, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रैकेट यहाँ नहीं देके मैं यहाँ पे देता हूँ ईयर्स, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा 8x - 7 ईयर्स। इज इट इजी? देखो बस प्रेजेंट इज मतलब क्या, अभी उसके 1 साल, तो 1 साल प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो 1 year ago a man was 8 times as old his son, ठीक है। उसके लड़के से मतलब 8 गुना है, जो भी ये 8 जो गुना है, यहाँ पे देखो नाउ हिज एज किसका, इसका मैन का, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सन एज। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया। नाउ हिज एज मतलब ये आदमी का एज है जो, अब उसके लड़के का स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, देखो इसका जो अभी प्रेजेंट एज तो इतना है, ठीक है। यहाँ पे नाउ एज बोला है ना, इक्वल टू उसके लड़का का एज कितना है एक्स, तो स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर लिख देंगे, डबल। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाता है। एक काम करते हैं, मैं सारे को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है। मैंने एक काम किया, अच्छा मैं ये वाला साइड दोनों इक्वल, अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज हो गया, मैं एक एक करता हूँ, ओके। मैं अगर एक्स स्क्वायर है, मैं सारे को उधर भेज दिया, एट ये हो जाएगा -8x, बिकॉज प्लस ना, इट विल माइनस, एंड ये जो प्लस, यहाँ पे क्या बचा, 0 है ना। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, किसी को अगर आता है तो तुम मे बी विल डाउट कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। ध्यान से देखो मैंने क्यों ऐसा लिखा है, ताकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं आता है, लाइक जानते नहीं वो 0 यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे किया था कुछ 0x² - 8x + 17, देखो ऐसा आया था। अब ये दोनों इक्वल है, तो मैं मेरा मर्जी, तो मैं एक्चुअली मैं डायरेक्ट लिख सकता था ऐसा, लेकिन मैंने तुम्हें दिखाया कि ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x² इधर आता तो ये माइनस हो जाता, हो ना, माइनस आंसर सभी साइन फिर से उल्टा पुल्टा होता। x ट्राई करोगे इसे हमेशा पॉजिटिव रखो, तो यहाँ पे मैंने x को, एक ही बात है देखो, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a, दोनों एक ही बात है, चाहे इधर लिखो या उधर लिखो, ओके ओके। नाउ यू सी, उसके बाद क्या, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, तो हम कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड इक्वेशन। समझ में आया ना, देखो इक्वेशन हुआ कि नहीं, क्वाड्रेटिक क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, सिंपल। तो अभी देखो इसे हम फैक्टराइज करेंगे, तो हम लिखते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तुम्हें जो करना है करो, फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग इसको जो भी करना है करो, लेकिन यहाँ पे इजी है तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम। नाउ देखो x² - 8x + 17 = 0, ठीक है। अब देखो अभी हम यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 × 17 करके देखते हैं कितना होगा, 17 ही होगा, कुछ और है क्या यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ तो 17, ओके ओके, मिस्टेक। देखो लिखना मत, मैंने इसे 17 पकड़ा था, तो ये 17 आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी जो मल्टीप्लाई किया तो 8 आना पॉसिबल नहीं उसमें, ये यहाँ पे 7 है, सॉरी फॉर मिस्टेक, दिस इज 7, ओके। बिकॉज देखो तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट आता है तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन तुम कहाँ पे गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसे कंडीशन में इसे फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होता है। अब 17 8, कोई भी टेबल में 17 कोई भी फैक्टर से ये 8 आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ फैक्टर 1 और 17 है। तो ये जान के ही हम कर सकते हैं, देखो गलती से भी हम सीख सकते हैं। देखो अभी तुम्हें मैंने एक चीज़ सिखाया कि अगर फैक्टर में ना हो तो ये क्वेश्चन गलत है। कैन यू गेट दिस वन, मतलब फैक्टर मतलब क्या, 17 को कौन डिवाइड करता है, 1 और 17, इसे मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, क्या 8 आएगा, कभी नहीं। तो मैंने देखा क्या रहे 8 तो आ नहीं रहा है, मतलब मैंने कुछ गलत जरूर किया। सो यू सी यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 7 है तो 7 तो आता है, 1 × 7 कितना होता है 7, 1 + 7 प्लस करने से 8 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, x², ये माइनस है, मैं यहाँ पे 7 + 1 लिख रहा हूँ, ओके।
x प्लस 7 इक्वल टू 0। मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ ताकि साइन कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, देखो एक्स इधर लिखो या इधर एक ही बात है। माइनस एक्स इंटू 7 ये माइनस 7x, और माइनस एक्स इंटू माइनस 1 जो माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 7। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना जब भी ये ब्रैकेट माइनस हो तो थोड़ा सा अवेयर रहो। यहाँ पे देखो इन दोनों को प्लस माइनस माइनस क्या होगा, -8, तो ये -8 है कि नहीं है। सो अभी हमें इसे हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन है, एक्स 2 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स है, देखो -7, यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स और प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि जब ब्रैकेट ऑन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ओके, एंड 7। और नॉर्मली ये और ये दोनों सेम होता है, ओके, उतना कुछ टफ नहीं है। अब यहाँ पे करने से हम क्या कर सकते हैं, x-1 ये, और x-7 इक्वल टू 0। अभी हमें इसका आंसर निकालना, ठीक है, पॉसिबल। देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, x तुम चाहो तो आइदर और लिख सकते हो, आइदर, क्योंकि दोनों 0 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x-1 इक्वल टू 0 और x-7 इक्वल टू 0। अब x 1 उधर जाएगा तो 1, x उधर जाएगा 7। देखो x का वैल्यू मिल गया, या तो लड़का का एज 1 होगा या तो 7 होगा, ये समझ में आया। बट यहाँ पे एक चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया, 1 year ago ए मैन वॉज 8 times, देखो मतलब 8 times एज ओल्ड एज सन। देखो अगर 8 times एज ओल्ड एज सन, मान लो कि अगर उसका लड़का का एज 1 होगा तो 8 times कितना होगा, 8, तो इसका पापा का तो एज 8 तो नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, 8 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब मान लो इसका मतलब 8 times, तो उसका लड़का का एज कितना होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आए, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आए, अच्छा दिखाया कि नहीं मैंने पता नहीं, आइदर और, बस ये दोनों 0 है तो यहाँ पे बस 0 और ऐसा। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2 आया, एक ये 1 आया, एक 7। अब इसमें से कौन सा राइट है, एक ही कोई राइट है, अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है राइट कौन सा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन में देखो ये बोल रहा है कि 8 times, मतलब उसका पापा का 8 times, अगर मान लेते हैं ये वाला लेते हैं तो 1 इंटू 8 कितना होगा, 8। उसका पापा का 8 तो एज हो नहीं सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो, कोई 8 साल का बच्चा कोई पापा बन जाएगा यहाँ पे, है ना। पहले तो उसे बड़ा होना पड़ेगा तभी जाके उसकी शादी होगी या कुछ भी होगा, 8 साल की उम्र में ये नहीं बन सकता, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, अगर ये सेम अगर 1 होता है तो 1 का ये क्या हो जाएगा, लाइक अगर उसका लड़का का लाइक जो भी हो, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली तो हम कहेंगे बट x इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। ये समझ में आया ना, पॉसिबल नहीं है। so x is equal to 7, ये समझ में आया। hence present age of his son equal to 7, ये कंफर्म है, ओके। and hence his father, और जो भी लिखा है मैन, यहाँ पे बुक में तो फादर नहीं है, his man, hence the present age of man लिखो is equal to 8 इंटू जी, क्योंकि मतलब 8 टाइम्स वाला ना, 8 इंटू 7 कितना होगा, और उसके बाद प्रेजेंट एज क्या था, ये देखो प्रेजेंट एज 8 इंटू 7 माइनस एक्स, ठीक है, प्रेजेंट एज बोला ना, 8 इंटू 7 माइनस 7, तो 8 इंटू 7 कितना होता है 56 माइनस 7, ये होगा हमारा 49, यस, बस इतना ही आंसर है, ठीक है, इजी था आई होप। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन यू से क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनीथिंग, ओके। क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आ गया तो कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अंजलि एज इज 3 years ago एंड द 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। देखो सामने सम ऑफ द रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट, ओके, उल्टा, जैसे कि 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, है ना, ठीक है। तो एगो का मतलब होता है पहले, बिफोर, एंड 5 years फ्रॉम नाउ मतलब अभी मान लो कि इससे प्रेजेंट है जो भी होगा अभी से उसका, ये
क्या होगा, सम मतलब दोनों को प्लस करने से 1/3 मिलता है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि। तुम्हें देखो उसका प्रेजेंट एज खोजना है। देखो ये क्वेश्चन देख के बहुत को लगता होगा अरे ये तो बहुत टफ है, ये तो होगा नहीं, लेकिन बिलीव मी अभी मैं करूँगा तो देखो कितना आसान होता है। ओके, पहले तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या नहीं है, सबसे पहले देखो, डरो मत, ऐसे क्वेश्चन से पहले क्या नहीं है वो हम देखेंगे। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज हम नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि बी, क्या बोलेंगे, एक्स ईयर, नहीं जानते तो एक्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं। देयरफॉर अंजलि एज, देखो 3 साल पहले कितना होगा, 3 years देखो कितना होगा, मान लो अभी एक्स है तो 3 साल पहले क्या, x-3 ईयर्स होगा। समझ में आया। अभी बोलता है कि फ्रॉम नाउ, मान लो अभी उसका प्रेजेंट एज एक्स है, मैंने बोला अभी से अगर 5 साल बाद, एंड अंजलि एज 5 years फ्रॉम नाउ। ओके, क्या हो सकता है नाउ के बाद, अरे बहुत इजी है, अभी जो भी उसका एज होगा उसमें प्लस होगा। ये समझ में आया, आई होप। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फिर से एक बार दोबारा। The sum of the reciprocal of Anjali 3 years is and the 5 years from now is 1/3। देखो ये जो भी मिला है ना इसका रेसिप्रोकल, समझ में आ रहा है। ये अभी 3 years रेसिप्रोकल बोला, ठीक है, 3 years पहले और 5 साल के बाद का, और इक्वल टू क्या है 1/3। क्या तुम्हें ये हार्ड लग रहा है? ओके डोंट वरी, दिस इज टू इजी। यू सी मैं रेसिप्रोकल लिख दे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा, तो देखो 1x 1/3 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x-1/3, ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा x+5। ये समझ में आया। इक्वल टू कितना बोला था 1/3 है ना, ये इक्वल टू 1/3। अब क्या है, देखो फ्रैक्शन में कभी भी आता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम, इससे बड़ा कुछ है नहीं। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे हम, मान लो जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर है, किसी को नहीं आता है तो मैं दिखा रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आ जाता है, तो हम एलसीएम ले लेते 3 2 6 तो 2 प्लस 2 1 2 3 ये 5/6 ऐसा आ गया। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे तो नंबर नहीं है तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x-3 और x+5। अब देखो मुझे इसे क्या करते थे, डिवाइड है ना, डिवाइड करते थे तो यहाँ पे क्या होगा x-3 और x+5 डिवाइडेड बाय x-3। अब देखो जो सेम सेम है वो तो कैंसिल हो गया, बचा क्या x+5, तो ये ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा है ना, प्लस। देखो यहाँ पे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ पे माइनस हो तो हाँ पक्का डालना चाहिए, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अब इनको भी अगर डिवाइड करेंगे इससे और इससे, है ना, जैसे यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो 2 मतलब 6 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा 6, तो वैसे इससे डिवाइड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा ऐसा करने पे, तो 1 इंटू दिस 1 x-3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। देखो डाउट, आई होप कि डाउट ना हो तुम्हें। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस। अब मैं ब्रैकेट अगर ऑन करता हूँ तो x + x कितना होगा 2x। अच्छा डायरेक्टली अगर तुम्हें समझने में थोड़ा तकलीफ आ रहा है तो मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, x+5 प्लस x-3, क्योंकि यहाँ माइनस साइन नहीं है तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसे मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x इंटू एक्स, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला याद है ना, x इंटू एक्स x², चाहो तो एक एक करके मल्टीप्लाई करो, -3x देखो मैंने इसे किया, उसके बाद इसे किया, फिर से अभी x से 5x जो भी हो प्लस 5x, और लास्ट वाला हमारा क्या होगा 3 5 जा 15 इक्वल टू 1/3। अब देखो ऊपर की तरफ 2x और 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 x², ठीक है ना, ये तो माइनस करते हैं तो हो जाएगा, ये तो प्लस साइन भरा है, ये 2x - 15 इक्वल टू 1/3। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे करना कितना आसान है, ये सब लिखने के बाद बस मैं यहाँ पे फिर से दोबारा लिख देता हूँ,
ताकि नो प्रॉब्लम इक्वल टू 1/3। ठीक, हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इधर से, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर ऊपर चला जाएगा, 3 2 x प्लस 2, और ये उधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। ठीक है, अब ये मिलने के बाद क्या कर सकते हो, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर देखो पहले तो सिंपल बनाना, 3 2 6x, 3 2 6, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2x माइनस 15। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स सेम है, एक काम करते मैं इसे उधर भेज देता हूँ। देखो मैं एक्स स्क्वायर मैं इधर क्यों भेज रहा हूँ, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ताकि साइन में उल्टा पुल्टा ना हो। उसके बाद यहाँ प्लस 2x है माइनस 15। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस 6x, और ये माइनस 6, यहाँ पे बच जाएगा 0। अब मैं इस साइड वाले को डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर, तो 2x से ये 6 गया तो कितना बचेगा, 4x माइनस, ठीक है, और बाकी 15 से 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस 21 इक्वल टू 0। मैंने इस तरफ लिख दिया। क्या ये समझ में आया, तो हम कहेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसे क्या करना है, अरे हमें देखो यहाँ पे खोजना है, क्या है कि क्वाड्रिक इक्वेशन खोजना है। क्वाड्रिक इक्वेशन मिलते ही हम उसे करेंगे सॉल्व, चाहे फैक्टराइजेशन करो या जो करना करो, फॉर्मूला के साथ करो, क्वाड्रिक फॉर्मूला या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर, आराम से कर सकते हो। अब देखो इसका है जो मुझे लाना है, देखो बाय फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ, इक्वल टू 0। ठीक है, अब 1 इंटू एक्स करेंगे, क्या होगा, 1 टू एक्स माइनस 21 21 ही होगा। अब 21 क्या क्या टेबल में आता है, 7 3 जा 21 आता है, फैक्टर, मैं फैक्टर बोल रहा हूँ, जस्ट ट्राई कर सकते हो ऐसा। और क्या आ सकता है 21, और कुछ आता है, लेकिन वो करने से पहले हम देखेंगे 4 इसमें क्या प्लस माइनस करने से आता है, तो 3 में से 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आता है, तो ये हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3, ओके सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस करने पे 4 आएगा, एक्स माइनस 20। अब देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, -7x माइनस 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 हो जाएगा +3x। ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस करो तो -4 ही मिलेगा। ओह तुम्हें दिखा नहीं करो, अच्छा ये देखो मैंने ये बताया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या ये समझ में आया। अब इसे फैक्टराइज कॉमन लेते हैं, हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। ठीक, 7 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। समझ आया ना, कॉमन लिया, 3 इंटू एक्स 3x 3 समझ आया 21, कॉमन लिया बस, x माइनस 7, और यहाँ पे मैंने x लिखा नहीं, x प्लस, चाहे ये दोनों को जा कहीं भी लिख सकते हो, मैंने पहले ये लिखना चाहिए था लेकिन मैंने बाद में लिखा, कोई बात नहीं, क्योंकि 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 दोनों एक ही है, यू विल गेट द सेम ओनली। ठीक है, अब ये मिल गया। अब देखो इधर x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, x इक्वल टू हो जाएगा 7, उधर जाएगा तो प्लस, और x इक्वल हो जाएगा -3। क्या समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या एज है जो नेगेटिव में हो सकता है, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस चाहे जैसे तुम अगर बाइक में हो, तुम इधर जाओ या उधर जाओ, डिस्टेंस मीटर में तो उठेगा ना, यू आर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। तो वैसे ही एज में क्या नेगेटिव हो सकते हैं, क्या तुमने आज तक ज़िंदगी में देखा है कि किसी का -2 एज हुआ हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे बट x इक्वल टू -3 is not possible because age can't be negative। ठीक है, ये समझ में आया, can't be negative, तो हम कहेंगे therefore x इक्वल टू 7, और हम कहेंगे hence अंजलि present age is 7 years। क्या ये हार्ड था, was it tough या इजी था।
अब खुद ही सोचो और खुद ही बताओ. So okay, this is done for this video, this part, and see you in the another video, and keep learning this. You see, when you will start knowing mathematics, you're going to love mathematics. The reason that you may not love now is that actually you may not know about maths. That's why. But suppose if you are too good in maths, of course, suppose someone is too good in maths, he love maths, that's why he is good. Have you seen anyone like he is not interested in maths but he's getting top in the class in mathematics? Not possible. Okay, so thank you so much for watching this video, and see you again in the next video. Okay, take care, bye bye.